को भी ऑटो स्टॉक्स पर अभी क्या स्ट्रैटेजी आप रेकमेंड कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को, क्योंकि हाल ही का जो प्राइस बिहेवियर है ज़्यादातर स्टॉक्स का वो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स वरिड नहीं है डीमोनेटाइजेशन के फिनेंशियल इम्पैक्ट को लेकर, और ऐसा भी माना जा रहा है कि कमर्शियल व्हीकल्स का स्पेशली एक स्ट्रॉन्ग कमबैक यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड हो सकता है। तो ऐसे में देखने चाहिए ऑटो शेयर्स। Autos are relatively better to the extent that there isn't much of cash unless maybe in two-wheelers. But however, for example, you talked about commercial vehicles, although people don't buy trucks using cash, but the cash operators, the freighters, do a lot of their business in cash, and that we've been hearing in newspaper articles and the truck operators union also complaining. That activity comes to a standstill, and as a result, their incremental need to add to their fleet also goes down that much. So commercial vehicles will take an indirect hit on their sales. Now, how long this lasts depends on how fast the economy remonetizes and so on, but I don't think commercial vehicles are immune to it either. Between the three of them, I think between commercial vehicles, four-wheelers and two-wheelers are a relatively better place to be. Yes, in certain rural areas, there are two-wheeler purchases happening on cash, but sooner or later we expect the government to come in with fiscal stimulus measures, which will be a positive effect on two-wheelers, and that's perhaps a better place to be in the entire auto sector. बिल्कुल। एक बार सन टीवी को देख लेते हैं। ये जो बढ़त दिखा रहा था उसके बाद अचानक से तेज़ी से गिरा है। तो सन टीवी इस समय नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड करते हुए देखिए ऑलमोस्ट अब स्ट्रॉन्ग खुलने के बाद इस समय ऑलमोस्ट 1.25% नीचे 486 के आसपास ये ट्रेड करते हुए, तो सेलिंग प्रेशर यहाँ पर जनरेट होते हुए। हेमंत, मीडिया स्पेस में आपकी टॉप पिक कौन सी है इस समय? देखिए मीर, मैं हमेशा से जी को बहुत प्रेफरेंस देता आया हूँ। मैं इसलिए नहीं कहता हूँ कि मैं आपके शो पे बहुत बार आता हूँ, बट मुझे वैसे ही जी टीवी बहुत ज़्यादा पसंद है। स्टॉक वाइज भी आई थिंक इट इज़ द सेफेस्ट बेट इन मीडिया, और मुझे लगता है कि ये स्टॉक को जब भी आपको डिप मिले 3 से 4% आप इसको लीजिए। मुझे करंट लेवल से भी जी आउट परफॉर्म करता हुआ लग रहा है, एंड आई फील कि इट शुड मूव 5 to 7% फ्रॉम द करंट लेवल्स। बाकी कोई भी, चाहे वो डिश टीवी हो या सन टीवी हो, सन टीवी खासकर कल बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ था, और आज 500-505 जो उसका पुराना रेजिस्टेंस है वहीं से वापस से प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा नेचुरल है सन टीवी के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग लॉन्ग हो गए थे। बट ओवरऑल आई स्टिल फील इफ़ यू वांट टू प्रेफर मीडिया, द सेफेस्ट एंड द बेस्ट बेट इज जी। जी मिस्टर कुबे की कंजम्पशन नेम्स पर भी आपके कमेंट्स लेना चाहेंगे। डीमोनेटाइजेशन से पहले ज़्यादातर कंज्यूमर ड्यूरेबल या फिर कंजम्पशन स्पेस की जो कंपनियां उनको काफ़ी प्रेफर किया जा रहा था, एक डार्लिंग सेक्टर के तौर पर इस पूरे ही सेक्टर को देखा जा रहा था। लेकिन पोस्ट डीमोनेटाइजेशन क्या रिकमेंडेशन दी है आपने अपने क्लाइंट्स को? क्या यहाँ से और करेक्ट हो सकते हैं ये नेम्स, या फिर कोई और व्यू है? Correct more, and I think they should correct more. And like I said, none of these sectors are immune to the effects of demonetization, at least in the short term, certainly so. But within consumption, I think we prefer staples over discretionary, because discretionary is where, in a cash-strapped situation, consumers are likely to postpone those purchases, and those will effectively be lost sales. However, staples are something that you can't postpone for too long. And once the remonetization happens, those businesses will come back into place. And further, in a situation where the government is likely to induce a fiscal stimulus, particularly targeted at rural areas and bottom of the pyramid, consumer staples will be a better beneficiary there. So I'm not saying that there won't be a correction between the two. Consumer staples should correct less than consumer discretionary. Over the longer term, however, consumer discretionary has a long way to go, because one of the side effects of demonetization will be the undermining of the informal sector, or the so-called unorganized sector, which will be a good opportunity for organized players to grow and take market share, irrespective of where the macro environment is. But before that happens, we'll need to face the short-term pressures, which will clearly lead to further downsides. जी
लॉरस लैब का आईपीओ भी आज से ओपन हुआ है। 8 दिसंबर को आईपीओ क्लोज होगा और इस आईपीओ में जो 78% हिस्सा है वो ऑफर फॉर सेल है, 22% फ्रेश इशू है और फ्रेश इशू के जरिए जो कंपनी को राशि मिलेगी वो 225 करोड़ होगी, जिसका इस्तेमाल कंपनी अपने डेट को रिड्यूस करने के लिए करेगी। ज़्यादातर हाउसेज ने सब्सक्राइब करने की सलाह दी है और हिस्टोरिकली हमने देखा भी है कि जो फार्मा या फिर हेल्थ केयर स्पेस के जो आईपीओ आए हैं उन्होंने इन्वेस्टर्स को ठीक ठाक रिटर्न्स डिलीवर किए हैं और 2016 जो रहा है आईपीओ मार्केट के लिहाज से वो काफ़ी एनकरेजिंग रहा भी है। कई और कंपनियां भी हैं जिनके आईपीओ पाइपलाइन में हैं और इसमें एक है पेटीएम, और पेटीएम इस समय एक जाना माना नाम है भी, स्पेशली डिमोनेटाइजेशन के बाद। और एक खास कॉन्वर्सेशन हुआ मिस्टर विजय शेखर शर्मा के साथ, सुन लेते हैं क्या कहना उनका आईपीओ को लेकर। आर यू लुकिंग एट लिस्टिंग? आप किस तरह से, अगर मैं एक देश का आम इन्वेस्टर हूँ तो मुझे पेटीएम की सक्सेस स्टोरी का फ़ायदा क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, और मैं इसके लिए बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ। पेटीएम अब पेमेंट बैंक भी बन रहा है और पेमेंट बैंक का मतलब है कि हम आपको एक पेमेंट के अलावा सेविंग अकाउंट, चेकबुक, डेबिट कार्ड, लोन, सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। लोन हमारे पार्टनर बैंक से आएगा वैसे, तो ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पेटीएम अब एक पेटीएम पेमेंट बैंक बन जाएगा। तो आपका वॉलेट जो अभी 197 कम्युनिकेशन हमारी कंपनी है वहाँ से मूव हो जाएगा पेटीएम पेमेंट बैंक में। पेटीएम पेमेंट बैंक 100% भारतीय कंपनी है। इसकी कंपनी में 51% की भागीदारी मेरी है और 49% हमारी कंपनी की है, वो भी एक इंडियन कंपनी है, सारे बोर्ड मेंबर इंडियन है। अब इसको अगर हम कभी लिस्ट करेंगे तो सिर्फ इंडिया में ही करेंगे, क्योंकि ये हमारी ना सिर्फ इंटरेस्ट है, ये हमारा एक तरीके से सब देश के वासियों को अपने साथ जोड़ने का भी एक प्रयास होगा। अभी तो ये लॉन्च हो रही है, तो 1-2 साल तो आप इस बात में लगाइए कि उसको एक तरह से खड़ा होने में लगेंगे, उसके बाद ही हम थोड़े दिनों के बाद बात कर पाएंगे। तो ये पूरा इंटरव्यू आज आप देख भी सकते हैं, आज शाम को 6 बजे जी बिज़नेस पर आप ये पूरा इंटरव्यू देख सकते हैं। लेकिन प्रमोद, इस बीच आप ये भी बताइए कि डीमोनेटाइजेशन के बाद ऑब्वियसली देयर आर सम पॉकेट्स जहाँ पर फ़ायदा देखने को मिला है, यू नो, इन टर्म्स ऑफ स्टॉक्स। आपने ऐसे कुछ स्टॉक्स ऐड किए हैं क्या? एंड आई कैन गिव यू एग्जांपल मे बी ऑफ स्टॉक्स लाइक लेट्स से टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स, जहाँ पर हमने मुँह आते देखा है, फ्यूचर कंज्यूमर में हमने मुँह आते देखा है। ये सब ऐसे हैं जिस पे पॉजिटिव रब ऑफ हुआ है डीमोनेटाइजेशन का। ऐसे कोई स्टॉक्स आपने लोकेट किए हैं क्या? मुझे प्रॉब्लम ऐसा लग रहा है कि Of course, there are pockets which will be an immediate beneficiary of demonetization, particularly where transactions are moving from cash to digital, and those companies which are predominantly catering to segments where this transition is happening much faster, presumably these are urban areas, will be clear beneficiaries. You know, examples of that are high street retail chains, apparel chains which are exposed to this dynamic. But unfortunately, you know, for the last 2 weeks we've been speaking to several of these companies. It seems like even they were not 100% cashless. To the extent that urban chains had almost 50% of their transactions going through cash. Now, obviously the cashless or the card or digital payments have gone up 70-80%, and they're taking market share from perhaps mom and shop retailers who were 80-90% cash. To that extent, they are a beneficiary, but not on an absolute basis. Barring one or two, I don't see how they will also not be, impacted by demonetization. So they're relatively big, relative beneficiaries, but on an absolute basis, even they will have to take some sort of a hit. जी हेमंत, ये टाटा केमिकल्स पर अभी नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकते हैं? डे हाई पर ये शेयर आ चुका है, 500 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और साथ ही कुछ और ट्रेड्स आपको समझ में आ रहे हैं नई पोजीशंस बनाने के लिहाज से, इंट्राडे में या फिर पोजीशन नजरिए से? देखिए, मेरे हिसाब से ऑयल एंड गैस स्पेस पे पहले मैं एक स्टॉक और बोलना चाहूँगा जो मेरी नज़र में आ रहा है, वो है पेट्रोनेट एलएनजी। आज ओपन इंटरेस्ट लॉन्ग साइड पे ऐड हो रहा है। स्टॉक करेक्ट हुआ है 402 से 370-375 के आसपास बेस बनाकर अब वापस बढ़ना शुरू हुआ है, तो आप इसमें स्टॉप लॉस रखिए 378 का। मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि 392 टू 395 आज या कल तक हमें देखने को मिल सकते हैं। आपके क्वेश्चन पे आते हुए टाटा केमिकल का अगर मैं देखूं तो 510 के आसपास काफ़ी कॉल राइटर्स आज पोजीशन एक्यूमुलेट कर रहे हैं और 480 के आसपास पुट राइटर्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि स्टॉक अगर 505 से 508 की जोन में आता है तो एक बार आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए।
और नीचे आए तो दोबारा 485 490 के आसपास ऐड कीजिए। थोड़ा शॉर्ट टर्म में 480 से 510 की रेंज के बीच में ट्रेड करेगा। जी चलिए, शुक्रिया हेमंत आपका भी और मिस्टर गुब्बी आपका भी शामिल होने के लिए शो में और अपने व्यूज़ मार्केट्स पर सभी स्टॉक्स पर शेयर करने के लिए।